Hello, my dear students. Welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Dear students, today we are starting with this topic, the search for genetic material. Now, in last session, we have seen that how the packaging of DNA helix was done. And we are dealing with DNA in this chapter also. We already know the basic structure, the double helix model of DNA. But what is the search for genetic material? Now we are knowing that DNA is a genetic material, but previously it was unknown. And even though the discovery of nuclein by Mischer and proposition of for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took a long time to discovered and even proved. So, by 1926, it's a long time after the discovery of all the law of inheritances and the work of Mendel. That means by 1926, the question to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. What is the molecular basis? This is the chapter name. So, which type of molecules they are involved? What is the genetic material made up of? What are the which chemicals are involved? So all these questions they came into the mind of the scientists. So the question that what molecule was actually the genetic material, it was not answered at that time. So certain experiments were performed, and then gradually by experimenting with many of the organisms, it was proved that DNA is the genetic material. So, what are these experiments? We will talk about it. Firstly, the experimental evidences for DNA as a genetic material, that is done by Griffith. So, Friedrich Griffith in 1928, and the principle which was formulated, that is known as transforming principle. So, this heading you have to learn first. And next topic we will deal with the Blender's experiment, which is related to bacteriophage infection. So later on we will do that. Right now we are starting with transforming principle. So I told you in 1928 Friedrich Griffith, in a series of experiments with a bacterium which is responsible for pneumonia. Its scientific name is Streptococcus pneumoniae. It is coccus type. So it is round in shape, and Streptococcus, it is a colonial bacterium. And he witnessed a miraculous transformation in bacteria. So transformation can be said that something has been changed. कुछ change हुआ, transform हुआ, right? So क्या चेंज हुआ, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये प्रूव किया कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, वो हम देखते हैं. So when Streptococcus pneumoniae, which is a bacteria, they are grown on a culture plate. Generally जो माइक्रोबायोलॉजी रीड करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में अपना स्टडीज आगे बढ़ाते हैं, वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ वर्क करते रहते हैं, और जो प्रैक्टिकल सेशन होता है उसमें कल्चर्स बनाते रहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है लेबोरेटरी में, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर. सो जिस प्लेट के अंदर, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स के ऊपर वो ग्रो करते हैं, सो दिस इज नोन एज कल्चर प्लेट. तो यहाँ पे लेबोरेटरी में स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी को ग्रो किया गया, एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिसको हमने नाम दिया, डिनोट किया एस, कैपिटल एस. और यहाँ पे मैंने दोनों कॉलोनीज को अलग अलग कलर से आपको दिखाया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. So first colony, they have shiny, smooth colonies they were produced, and other colonies they produce rough. So what is this rough and smooth? Let us discuss. ऐसा क्यों हमने नाम दिया है? So when Streptococcus pneumoniae bacteria were grown on culture plate,
these two colonies they were produced. This is because the S strain, जो blue color से मैंने highlight किया है, the S strain bacteria have a mucus coat, जिसको हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड की एक कोट है. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट फ्यू चैप्टर्स बैक 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि किस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर एक कोटिंग होता है, उसकी सेल वॉल होती है, उसके ऊपर कैप्सूल लेयर होती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सो हियर अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट इज प्रेजेंट. वाइल आर स्ट्रेन, जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया है यहाँ पे, जिनको हमने रफ कॉलोनीज बोला है, उसके पास ये पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं है. सो फिर से हम रिवाइज करते हैं. स्मूथ शाइनी कॉलोनीज किसको बोला है हमने? जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोटिंग है. और आर कॉलोनीज किसको बोला है? रफ कॉलोनीज, जिसके ऊपर ये पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं है. सो टू टाइप ऑफ कॉलोनीज दे वर ग्रोन. देन माइस विच वर इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन. क्यों इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन हम बोल रहे हैं? बिकॉज द एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट and because of it the mice they die from pneumonia because it is a pneumonia causing bacteria. So pneumonia के infection से mice मर जाते हैं. But mice infected with R strain they do not develop pneumonia, वो बच जाते हैं. ठीक है. So इन दोनों कॉलोनीज में से सबसे वायरुलेंट कौन सी हुई? एस स्ट्रेन, क्योंकि ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर हम ये बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, माइस की बॉडी के अंदर, सो माइस विल नॉट डाई, वो लिव करेगा, वो जिंदा रहेगा. बट इफ एस स्ट्रेन्स वर इंजेक्टेड देन, एज दिस इज अ वायरुलेंट वेराइटी, और स्ट्रेन एक्चुअली वेराइटी हम यहाँ वर्ड यूज नहीं कर सकते, वेराइटी हम जनरली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. सो इट विल बी रॉन्ग. सो इट्स माई मिस्टेक. जनरली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं. सो एस स्ट्रेन, द माइस विच वर इन्फेक्टेड बाय एस स्ट्रेन दे डाई बिकॉज ऑफ निमोनिया. सो दिस वॉज फॉर्मुलेटेड, ये उन्होंने देखा. अब इसी को हम चार्ट फॉर्म में बताते हैं. फिर से मैं रिपीट करूंगी. एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, सो माइस डाई. ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया है. Similarly, when R strains were injected, mice live. So this is the difference which was observed. Now Griffith was able to kill bacteria by heating them. And he observed, उन्होंने different experiment किया, अलग अलग उन्होंने prove करने के लिए अलग अलग experiment किया. Now what he did, उन्होंने bacteria को kill कर दिया. How? By heating. So he observed that heat killed S strain bacteria which were injected into mice did not kill them. जब S strain को हम हीट कर रहे हैं, heat killed S strain, उनको जब इंजेक्ट किया तो mice will live, mice is alive, वो मरता नहीं है. तो ये चेंज उन्होंने देखा. Again, when he injected a mixture of heat killed S and R bacteria, दोनों को मिक्स करके उन्होंने इंजेक्ट किया है. नाउ द माइस डाइड. ऐसा कैसे हुआ? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा. फिर से मैं ये लाइन रिपीट करती हूं जो मैंने यहां नीचे दिखाई है आपको. हियर यू कैन सी एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, जो यहां हमने यूज किया है, और यहां हमने देखा जब हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो माइस जिंदा रहते हैं. ठीक है, वो मरते नहीं है. वो कब मरेंगे? जब एस स्ट्रेन को एज सच हम इंजेक्ट करेंगे. बट यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, तो उससे वो उसका इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं. बट लास्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? एस स्ट्रेन विद हीट किल्ड एंड आर स्ट्रेन्स जो हीट किल्ड नहीं है वो लाइव हैं, उनको हम एज सच, क्योंकि वो तो कोई निमोनिया का इफेक्ट नहीं देते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया है. बट स्टिल mice died. So what happened? ऐसा कैसे हुआ? So this question arise in our mind. So the conclusion is, क्यों ऐसा हुआ उसका भी मैं रीजन आपको बताती हूँ. The conclusion is
the R strain bacteria had something which has been changed by the heat killed S strain bacteria. उन्होंने उनको बदल दिया. हम ऐसा एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एस स्ट्रेन ने उनको ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ जादू किया कि आर स्ट्रेन अब निमोनिया को देने लग गए. ठीक है, उन्होंने निमोनिया देने का एक कैरेक्टर अपना लिया. उन्होंने एस स्ट्रेन से कुछ ले लिया जो वो माइस को मार सके. So some transforming principle transferred from heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. फिर से हम देखते हैं R strain, ये प्रिंसिपल हमने देखा था. S strain बैक्टीरिया हैव म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट. ठीक है, और वो वायरुलेंट थे. बट आर स्ट्रेन के पास ये कोटिंग नहीं था, इसलिए वो वायरुलेंट नहीं थे. ठीक है, अब क्या हुआ, एस स्ट्रेन ने उनको ये पॉलीसेकेराइड कोट जनरेट करने का ऐसा एक मंत्र दे दिया. हम ऐसी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. लिखने के लिए आपको बुक के ही लाइन टू लाइन वर्ड्स समझ के लिखने पड़ेंगे. राइट, सो हियर एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज ने आर स्ट्रेन को ऐसा कुछ मंत्र दिया कि जो आर स्ट्रेन पॉलीसेकेराइड कोट डेवलप नहीं कर सकते थे, अब वो करने लगे. ठीक है, और करने लगे तो क्या इफेक्ट हुआ, हमने देखा दैट ये भले ही मर गए, हीट किल्ड हो गए, बट इन्होंने मरने से पहले इनको मंत्र दे दिया. ठीक है, एंड जब ये माइस की बॉडी में एंटर हुए तो उनको निमोनिया इफेक्ट दे दिया एंड माइस दे डाइड. ठीक है, हम ऐसा समझ सकते हैं. सो दिस वाज कंक्लूजन. Again, I am repeating it. The R strain bacteria had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria, and some transforming principle transferred from heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat. That's why what happened? The R strain become virulent. और virulent होते ही वो भी निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए. तो यही चीज उन्होंने प्रूव की एक्सपेरिमेंट के थ्रू. एक्सपेरिमेंट किसने किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ. इसीलिए ग्रिफिथ प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, या ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी इसको जाना जाता है. तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको ये सारी चीजें रिलेट करके याद रखनी पड़ेंगी. Now let us see biochemical characterization of transforming principle. Prior to the work of Oswald Avery, then Colleen MacLeod and Maclean McCarthy, जिन्होंने वर्क किया था बिटवीन 1933 टू 1944 के बीच में, 10-11 साल के अंदर, एंड द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन. ठीक है, उन्होंने उस वक्त माना था कि प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल. एंड दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच वाज गिवन बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से उन्होंने ये अभी सोचा था कि प्रोटीन हो सकता है जेनेटिक मटेरियल. सो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स like proteins, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S cells to see that which one could transform live R cells into S cells. ऐसा क्या चेंज हुआ, कौन सा मंत्र S सेल में से R सेल के अंदर गया? प्रोटीन है, DNA है, या RNA है, या और कुछ है? ऐसा उन्होंने पता लगाने की कोशिश की. So they discovered that DNA alone from S bacteria cause R bacteria to become transformed. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, that this DNA alone is responsible for switching over to R bacteria becoming S bacteria. ठीक है, वो वायरुलेंट बन गए, पहले नहीं थे. So they discovered that protein digesting enzyme which are known as proteases and RNA digesting enzyme जिनको हम बोलेंगे RNases did not affect transformation. So transforming substance was not a protein or RNA, क्योंकि इन पे कोई असर देखी नहीं गई.
क्योंकि इन 3 में से भी पता लगाना था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो बाय द यूज ऑफ दीज एंजाइम्स ऐसा पॉसिबल हुआ। सो डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब डीएनएज का यूज किया गया तो डीएनए खत्म कर दिया गया, और जैसे ही डीएनए खत्म कर दिया गया उन्होंने देखा कि ये चेंज पॉसिबल नहीं है, तभी जाके उन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आरएनए को हटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटीन को हटाया किससे? एंजाइम्स की मदद से। प्रोटीन्स को हटाया प्रोटियोजेस, आरएनए को हटाया आरएनएजेस, ठीक है। यहाँ पे हमने एंजाइम्स के नाम लिखे हैं। तो प्रोटीएजेस दे वर एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, देन आरएनएजेस दे वर एबल टू डाइजेस्ट आरएनए, एंड डीएनए जब जैसे ही यूज किया उसने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसी से प्रूव किया दैट डीएनए इज अ genetic material, and they concluded that DNA is a hereditary material, but not all biologists were convinced at that time. Okay, so आज हमने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट समझे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लिया है विच वॉज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? ये सब छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। आपको बहुत छोटी छोटी बातें आपके माइंड में इस तरह से एडजस्ट करनी है, इस तरह से अरेंज करनी है कि एग्जाम के टाइम पे वापस सही इंफॉर्मेशन आपको याद आए। तो वो आपका काम है, ठीक है। आपके माइंड को डायरेक्ट करना आपका काम है। मैं ये आपको सलाह देना चाहती हूँ, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पढ़ाना मेरा काम है, बट याद रखना आपका ही काम है। तो कैसे याद रखना है? सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप अपनी एबिलिटी को जानिए, उसको ढूंढिए। नहीं समझ में आए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, या किसी भी वेल विशर आपके गार्जियन की हेल्प ले सकते हैं, बट याद आपको ही रखना है और एग्जाम में आपको ही याद रख के लिखना है। सो ये छोटी छोटी बातें आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ बैक्टीरिया, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया इज वायरुलेंट, जिसको हमने एस स्ट्रेन नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा और साथ साथ में डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। दिस होल चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, और छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ही सोच समझ के आपको लर्न करने पड़ेंगे। सो टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।